First of all, a very warm good morning to one and all. Today, as you all have been informed, that I will be taking you to a journey of making a wonderful black book, how to make a good research project or black book for your university examination. Now, for BAF students, this project came just 2 years back. That is in 2019. But for BFM and for BBI, this project work is there for more than a decade. For BAF, it is recently introduced. Yeah. Okay. So, I'll quickly take you to the syllabus, what the university syllabus says, and how should you prepare and how you should not prepare. For over a decade, I have been guiding thousands of students. I have guided a lot of students in making wonderful black book, and really they have fared well in exams as far as their Viva is concerned. So I'm sharing the screen, and let me show you some trendy topics, that which are the hot topics which you can think you can research it well. You can make a really good black book. I'll show you that. Just a second. Give me some time to share the screen. Yeah. Yes. I presume the screen is visible. Can anybody respond? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Guys, uh, morning I was talking to, I think Advait gave me a call somewhere around 10:15, and he gave me his topic and I started defining for him. So here in this class, I will define some of the topics for you. You give me an area, I will define your topic. But after talking to Advait, I just took a Word file and I started defining some topics on my own. So I'll show you this topic. Please bear with me, my PC is very slow today because I have opened a lot of things and powerful softwares. So give me some time. Audience, mute yourself. Please mute yourself. Yeah. Okay. So just have a look at this topic. See, how should you define your topic? In fact, all these topics have been defined by me at 10:30 in the morning, just half an hour before. Yeah. See here. See the first topic. The first topic is the menace of insider trading, regulatory measures and strategy to overcome it. See how I've defined it. Now, I have taken finance topic because BBI, BFM, and BAF, they have to take topics related to finance. So the first topic is the menace of insider trading, and what are the regulatory measures by SEBI, by Ministry of Corporate Affairs, and how to overcome it. You know what is insider trading? Let's say people who run a company, they know that what announcements they are going to make, what is the position of their profit and loss. Now, people who are managing company, they can leak information selectively about their company to some outsider, and outsiders can make a lot of money by having access to certain confidential information. So now it's very difficult to overcome the problem of insider trading. So now here is a topic, insider trading. First of all, you're calling it a menace, and then you're understanding the regulatory issues, and then you are telling a strategy to overcome it, how to overcome it. So this topic I defined early morning. Then second, forensic audit. How is a fraud detected in forensic way? Now most of the finance students, BBI students and BFM students, you have not studied forensic audit, but you have studied about audit. So let us try to explore a new area, a virgin area, which is forensic audit. And let us try to understand how is a fraud detected in a forensic way. So here, there is a question mark. Next is impact of ethics training in Indian organizations, exploring strategies that really make it effective. So there are a lot of Indian organizations where employees are trained in ethics, that how to be ethical. So there are ethical workshops which are organized in various Indian organizations. So, but ethics is something which is very, very subjective. People may undergo the ethics training, but they may not follow it because ethics is very, very subjective. So you are exploring strategies that will really make it effective. So how to make a ethics training exercise effective? So there are a lot of Indian firms
where ethics training is going on. You must have heard about Devdutt Patnaik. Yeah, you must have heard about Radhakrishna Pillai, who has written Chanakya, who has written about Chanakya and so many other books around it. Devdutt Patnaik, he writes on Indian mythology, and Devdutt Patnaik, he conducts a lot of ethics training workshops in many Indian organizations. He even sits on boards of certain companies. So I have taken this topic. Then this fourth topic is Advait's topic. Advait, you reserve this fourth topic. I was discussing in morning with Advait how to define a topic. Then I defined it in my way. Advait, this fourth topic you reserve it, and nobody will take it. I will ensure this. Embedding Yes, sir. Thank you. embedding environmental concerns in business model. A case for sustainable business practices in the era of climate change. Yesterday, just today morning, Advait gave me a call and he said, "Sir, I want to work on sustainable business model." So I just started thinking how to define this topic. Then when the call got over, I sat on my PC and defined this topic for Advait. Embedding environmental concerns in business model, a case for sustainable business practices in the era of climate change. Yeah, so this topic is for Advait. Advait, you reserve it. The next, exploring the effectiveness of internal audit practices in banking companies. Now, in every banking company, internal audit happens. So you are exploring its effectiveness. Is internal audit effective? Because if the internal audit is effective, it is good, then the external audit, which is the statutory audit, that will go better. You just analyze these topics, guys. All my students, 100 plus are there. Just see these topics. 5 topics is there before you. What is unique in these 5 topics? Come on. I give you 30 seconds. Just reflect on this topic. Find out what is unique in these 5 topics. All have been defined by me early morning 10:30. So you have added a definition to the title, like in the first topic, the menace of insider trading, and then you defined it, regulatory measures and strategy to overcome it. The definition of insider trading is not regulatory measures. Yeah. See. Okay. You have Good. written the main sentence and then you have like what we have to मतलब एक part लिया उसमें से एक main सब एक point में से सब point लिए है. Okay. Anybody else? Anybody else? So it's basically the name. We come through this daily, but we don't look at the way you have portrayed it inside the name, the quote over there. Okay. Anybody else? Few more people give it a try. First of all, let me tell you, the topics that you see before you are clearly defined. There is no ambiguity. There is no confusion. By simply looking at your topic, people will come to know what are you trying to answer. Yes, they are clearly defined. Just take Advait's topic, topic number 4, embedding environmental concerns in business model. See, whatever business model that you have, try to bring environment into it. Then I'm making a case through my research work. I'm making a case for sustainable business practices. I'm telling that sustainable business practice is the need of the hour in times of climate change. Look at topic number 2, forensic audit. Now I'm answering how is a fraud detected in a forensic way? How to go ahead and detect fraud in a forensic way? I'm trying to answer a question. Is that clear? So just random thoughts came to my head in morning after talking to advisor, and I just understood few topics and defined it. Yeah. Now let me take you to some other slide. This is a note file, and I have some questions for you, which most of you have in your mind, and I will try to answer these questions. Yeah. First, how do you identify a researchable topic? Yes. If I ask you, now many people will be confused, which topic should I take? People are doing fundamental analysis, people are doing technical analysis, people are doing comparative study, people are doing on capital budgeting,
people are doing on, let's say, internal restructuring, blah, blah, blah. People are doing lot many topics. But when I see people's topic, no, I don't like it. I don't understand why people have defined the topic so poorly. So first of all, let me answer this first question. Let me put everything down. How do you identify a researchable topic? First thing is your interest area. Identify your interest area. See, try to take a topic which interests you rather than what interests your guide. You are not here to solve somebody else's problem. You are not here to study somebody else's interest. You are doing a research work on that particular topic in which you are interested. Please be mindful of this fact. Take a topic that interests you. Is that clear? This is the first hint that how you are going to identify a researchable topic. Next, define it clearly. Define it clearly. Clearly means by looking at your topic, people should understand what the guy or girl is intended in doing in this particular project. Define it clearly. Next, see, normally the best idea that you get for your research topic is by reading newspapers. I'm not telling you to read every day's newspaper. Just take one day's newspaper, Economic Times or Business Standard. Take one day's newspaper, flip through the pages, and find one topic which is your interest area and define it properly. Define it properly. Yeah. So newspapers are the best source of getting information. Newspapers are the best source where you get wonderful idea in articulating your research topic. Next, talk to experts. Talk to experts. Now, when people give me a call, I discuss with them, I explore their areas, ask them some questions, and on the basis of that, I define them a topic and give it to them. So talk to experts. Now, these experts could be your professors. Yeah, it could be certain people from industry who are your relatives. People who are working in corporates or people, let's say, who have a lot of experience in your relatives or in your neighborhood. Try and speak to them. They will really give you a very decent topic. Next, take a topic that is action oriented. Action oriented means see a problem and then take a topic. See, as I said that I have been guiding TY students for more than a decade on how to make wonderful black books, and most of the black books have been judged as the best black book. I remember again in 2016 there was one student, Raj Mehta. He took a topic on cryptocurrency and he came to me, he selected me as a guide, and I told him that out of your entire 80 pages black book, if you can answer one question, can cryptocurrency be a legal tender? Can cryptocurrency replace the paper money? If you can answer this question, you have really done justice to your project. And finally, he collected data from so many places and he answered whether cryptocurrency can be a legal tender or not. And when he gave his Viva, University Viva, the guy was so pleased with his black book that he said, give me a copy of your black book. This is one of the best projects. Similarly, there was a girl in BBI, Mahima Nair. She really fared very well in a black book. And ultimately, guide was very impressed. Kunal sir was there. He's in MD college. He came to me, sir, I have never seen a project of this sort. And people in their resume, when they make their resume, they write about their black book, that this was my research topic. That's why I'm saying, simply don't take your research topic just to get 100 marks. Or simply don't do research topic for the sake of submission because there is a necessity. Don't do that. Take a topic in which you think you can make a career. Take a topic which is dear to your heart. Take a topic that really keeps you going. So, action-oriented. I'll tell you one example. From this year, I have started training IT and CS students in taking black book. So I was just discussing with BSc IT students, and I found that there were a lot of lacunas in their black book. People have taken some finished topic. So I told them, please identify a problem and then generate a topic around it. So this will give you some idea. So one person was working on this particular thing, let's say on inventory management software. Now
just an example. This will give you an idea how to take a good topic in your area, whether finance, whether financial market or banking and insurance. It will give an idea. So that person was working on a software where, let's say, a supermarket is there or a departmental store is there. So when the stock level comes down, automatically the in charge of that particular supermarket should know that when should I order the goods so that there is not a situation where stock is out. So he was working on a software. I said, also softwares are there in the market. There is nothing new in it. And in fact, nobody is going to buy your software. So you are wasting your time behind your black book. Try to find something else. So he said, sir, give me one topic. I said, okay. You know, in Mumbai, people use local trains. So I gave him one topic. I said, in Mumbai, there are local trains and people buy passes, monthly pass or 3 monthly pass, quarterly pass people buy. And people and on the day of renewal, people forget that they have to renew their passes. And many times it happens that your pass is expired and suddenly the traveling ticket examiner, TTE, comes before you and he charges a fine. Now, traveling without a ticket is a social crime. You must have heard on the platform. Now, people are doing this mistake out of ignorance because they don't remember. After 3 months, they don't remember which is my renewal date. And sometimes 2-3 days people travel without pass and they get caught up and they pay fine. So I said, why don't you work on this particular problem? This is a genuine problem. Even I have paid fine. Even you people must have paid fine when your pass would have expired. So I said, this is a problem. Work a software around it and try to solve a problem. It will be sellable. It will be sellable. So now he's working on that. Like I say, railways, when they issue passes, they take a lot of information about us. They ask our Aadhaar card sometimes, or they ask for PAN card. Why don't they simply take our cell number and put in the software and give us a message, a WhatsApp message, or for that matter, regular message that your pass is about to expire, please renew it. We never get such messages. However, we get a lot of messages from electricity department, from gas connections, but we don't get messages from railways, and because of which social crime is happening. So that's why I'm saying, see the problem around you and identify a topic. So if you talk to me about your area, I will definitely define your topic in a beautiful way and can give it to you. Just exactly last week, Saturday, I was invited at Andrews College to train TY BAP students, and I've been doing for past 4 years. And I listened some 7 or 8 topics, define them and give it to them. So you can watch my video. If you go to Fuller Lives, the first video, which is there on complete guidance for Black Book, that is for TY BAP, and I have defined people's topic. But here I'm not going to do that exercise. But just a few food for thought, like how you are going to define your topic. Now, guys, pay one more attention. I'll give one interesting area for you, which you can think. If you flip through the pages of newspapers, these days there is a lot of talk about cryptocurrency. Scams, frauds, all this thing about cryptocurrency. Just read one article about cryptocurrency. If you're interested in cryptocurrency, take this particular topic. Define it properly. Is that clear? You can take example of IPOs in India. Like recently, Paytm's IPO came in the market and it fell down by a good percentage. And Vijay Shekhar, the founder of Paytm, he started crying and said the market didn't judge us properly, and he started crying about. So you can study about IPOs also. So see a news and just think whether is it your interest area. If it is your interest area, talk to some experts. Talk to them. They will define and they will give you that particular topic. But a good topic is that topic, but which solves a problem. Please take it from me. Take a topic which has a potential to solve the problem. Now here, I was asking what is common in all the 5 topics. I asked you a question. What is common in all the 5 topics? The common is that all the topics, they are giving solutions. If you focus the 5 topics before you, every topic has the potential to offer a solution. First, the menace of insider trading. Regulatory measures. What are the regulatory measures by SEBI and how to overcome it? You are telling a solution to the government, or for that matter, certain regulatory authorities, that how to overcome it. How insider trading can be stopped. So it cannot be stopped 100%, but how it can be mitigated. See the second topic. You are telling your readers what is the forensic way of detecting a fraud. See the third topic. You are telling the readers what are the strategies. See the third topic. You are telling your readers which are the strategies by which you are going to make
Ethics training effective. These days, people are taking a lot of shortcuts. They are committing frauds. They are going behind bars. Is that clear? That should not have that should not happen. So, how to make ethics work in companies? Fourth is sustainable business model. Yes, people are building Ganeshas of newspapers and some recyclable clay. So, how to embed sustainability into your business model and make it a brand out of it. Now, Advait can make a wonderful career if he thinks of going into CSR, or for that matter, if he wants to explore this particular field, he can do a PhD from Harvard, or for that matter from other Ivy League universities. Last topic is you are exploring how effective is the internal audit practice in banking companies. You are exploring that how internal audit practice is effective. If it is not effective, you can suggest some strategies. Here you can talk to the internal auditors. Here you can talk to the bank managers. Here you can go to a bank and understand how internal audit is made effective. So every topic is a researchable topic. So take a topic which can be researchable. Simply don't take audit in banks. If you take a topic audit in banks, what are you going to find in this? But when you take this topic, exploring the effectiveness of internal audit practices in banking companies, find it all these topics are fit for PhD thesis. I've been guiding a lot of research scholars at pan-India level. You can go to my channel Fuller Lives, where I've conducted a lot of workshops for faculties, for business school faculties. And I have guided and consulted thousands of people. And I take workshops at regular level for pan-India level. If you see all the 5 topics, they are fit for a PhD thesis. Imagine a topic worth going for PhD, you are taking for your black book at TY level. Just think the amount of learning that will happen if you seriously devote and commit yourself in taking these studies. So choose your topic very, very carefully. Sit with your guides, sit with experts, talk to them, see what is the ground reality. See, many a times people take a topic which is an armchair topic. कुर्सी पर बैठ करके लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं. Never do this. You cannot solve a problem by simply sitting on the chair. No, you can never do so. See the reality. Talk to people. What is the problem? And then take a topic. Rather than simply taking an armchair topic. कुर्सी पर बैठ के अगर आप रिसर्च करना चाहोगे, then trust me, it will not be a good project. Please step out of your comfort zone. Take a topic. Go and talk to people. Go to banks. Some doors will be closed on your nose. People will say no to data. That happens. But that itself is a learning. I can really give you tens of careers in research. Tens of careers in research. I'll give one hint. So tomorrow I have a very busy day. Tomorrow I have somebody from Jamnalal Bajaj coming and speaking to you. And tomorrow in the evening, somebody from IIM Ahmedabad is joining me for a talk on Fuller Lives. So my tomorrow's schedule is very, very hectic. Though it's a Sunday, but I can give you dozens of topics in your area where you can explore it nicely, and you can make wonderful careers into the research. Yeah. Okay. Now let me quickly go to my note file. I'll show you some other things. Yes. Now, okay, guys. Now there is a lot of insistence by your professors that take a topic where you should frame hypothesis. Let me tell you, there are 100+ people in this class. If I tell you to define to frame a hypothesis, almost all will fumble. Unfortunately, in your research methodology, you may not have taken how to articulate hypothesis and how to test it. So if you're taking a research topic, include variables where quantitative data can be collected, where you can collect some numbers. Now there are BAF people and BFM people. They take topic related to stock market and IP and all those things. Now there is an app called Money Control app. Yeah, from there you can get a lot of quantitative information about stock prices of company, earning per share, PE ratio, and so many other issues. You can get it from there. So you can accumulate those data, and those data can be analyzed systematically, and you can produce some a pie diagram or bar charts in your research project. It will look very, very nice. Try to do a survey in your project. Survey in the sense, take a Google form and give it to a certain sample, at least 30 people.
Give it to 30 people, give it to 40 people, give it to 100 people. Try to collect some quantitative information. So when you collect information through Google Form, yes, you automatically you get pie diagram, automatically you get histogram, yeah, and all this can be pasted in your analysis and interpretation section. Your work becomes very, very easy. If I'm getting something to see, let's say a pie chart, or maybe for that matter a histogram, my sense of understanding becomes better. Yes. So please include a survey, but there are certain topics where survey is not possible. Let's say somebody is studying about Exim Bank, Export Import Bank in India. So in Exim Bank there cannot be a survey. You can't take a survey of students who are studying in college and ask them questions related to Exim Bank. This will be a sampling error. It will be a big stupidity. So don't do that. But simply you can go to Exim Bank, you can talk to a manager, conduct his interview, and his interview you can add it in your research project. You can take interviews also. So when you collect data through interviews, this is known as a qualitative study. This is known as qualitative study. But when you do surveys and where you get numbers, you get to know people's opinions and feelings, that becomes a quantitative study. So hypothesis can be framed only in quantitative study, not in qualitative study. In qualitative study, where you have taken interviews, you can have propositions. You can have propositions. Yeah, okay. So again, if you focus on my third point, focus here. Try to answer certain questions through your research. Please, everyone in this class, अपने research project से कुछ सवालों के जवाब दो. If not many, at least answer one question. Raj Mehta only answered one question, whether cryptocurrency can be a legal tender. And today Raj Mehta is somewhere in Spain pursuing his MS in finance degree. Is that clear? He's there in LinkedIn. I congratulated him. He gave the message back to me, but he answered only one question. Can cryptocurrency be a legal tender? So out of your research project, answer one question. Let's say BAS students, they take a lot of topics related to capital budgeting and capital structure. They do comparative analysis. They take two companies and try to compare their capital structure. So try to answer which company is better, why it is better. Use the logic, because the P ratio is very good, the current ratio is very good. This is analysis. Even when you're comparing two companies, let's say banking students, they compare two banks and they're comparing their services. So at the end, you should be able to comment who is better. When you're doing a comparative study, at the end, you should be able to tell who is better, who is not better. And when you're saying somebody is better, why is better? You simply cannot say out of your intuition or out of your imagination that ICICI Bank is better than HDFC Bank. So when you make a claim that ICICI Bank is better than HDFC Bank, you really need to support with data why you are saying ICICI Bank is better than HDFC Bank. You require some data. So in the pursuit of your research, try to find the data that why ICICI Bank is better than HDFC Bank. Collect customer satisfaction data. Collect their market share, market price, share price and all. Is that clear? Collect on the types of services that these two banks are offering. Talk about who has the maximum depositors out of these two banks. HDFC के पास ज़्यादा depositor है, ICICI के पास ज़्यादा depositor है. See their past 5 years profit, and then make a comment that who is better, ICICI is better or HDFC is better. So whenever you make a comparative study, answer a question who is better, and when you say why is better, support with facts why somebody is better. So research should make you think logically and not otherwise. I have seen nonsense to nonsense projects. Is that clear? At the end, people come, sir, ये mistake हो गया, इसको कैसे साफ करना है, कैसे सही करना है, आप मेरे को बता दो. Then I give my thoughts, इसको ऐसे करो, वैसे करो. Just 2 days back, I was judging a research scholar at a central university. PhD कोई कर रहा था, और उसका मतलब उसको PhD की डिग्री मिलने वाली है, and she was presenting, and I said, this is utter stupidity. She has cooked up her data. उसका डेटा पूरा झूठ बोल रहा है. एंड मेरे मन में ऐसा लगा कि शी शुड नॉट गेट अ PhD thesis. अगर मैं उसका गाइड होता, आई वुड हैव टोल्ड दैट गो बैक, कलेक्ट डेटा वंस अगेन एंड डू ऑल द इम्प्रूवमेंट्स एंड देन कम बैक. बट ठीक है, आजकल ऐसा भी हो जाता है. So please avoid all those things. Good people, they will see your data, they will see your project, and they will comment whether you have done a sincere work or not. And sincerity is appreciated. Mind it, many of you are going to foreign universities. But trust me, there are a lot of people from Somaya
who are doing MS in finance or MBA or for that matter business analytics and so many other programs. There, they are very strict with your project work. So the project that you have in your TYs, it is not restricted only to TY. Post your TYs also you have to take this project. If you are doing MBA, you have to make a project. If you are doing MCOM, you have to make a project. If you are doing MS in finance, then also you have to make a project. So project is not going to leave you. Even if you work in an organization, your boss will tell you, give you a problem, and he will tell you to come out with solutions and recommendations. There you'll have a project. Okay? So include the element of primary data in your study, frame hypothesis, and use Excel for analysis. एक्सेल को यूज करो एनालिसिस करने के लिए. मैं भी आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल को कैसे यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए. आई विल फ्रेम सम हाइपोथेसिस एंड टीच यू. तो ये सारे मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने मेरे मन में जो आए सुबह 10:30 बजे मैंने यहाँ पे नोटपैड पे लिखा एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू. होप व्हाटएवर आई एम सेइंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग समथिंग दैट यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट. यस, ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. Now let me take you to this particular, I'll show you what should come on the first page, what should come in the second page, third page. आपके black book में क्या है मैं पूरा आपको बता दूँ. Just bear with me, my PC is slow today. Just bear with me. Okay. Anybody has got some topic? Okay, it's come. Let me not go for filler. Yeah. Let me slightly zoom it for you. Terribly my PC is slow. Hang over pura. Just give me some time. So this is the syllabus copy of university. By the time it will zoom, this PC is angry with me. So if you see your syllabus copy, let's say TY BAF student, simply type in Google TY BAF accounting and finance syllabus. So in your syllabus copy PDF, university has given everything. What should come on the first page, what should come on the second page, university has given everything. Yes, okay, just see this. So now this is for financial markets, but for BBI and that it is 100% same. There is no change. The syllabus is same. There is no change, guys. So now I have downloaded BFM syllabus. So university is giving guidelines for project work at third year semester 6. So syllabus is same for all. BBI, BAF, for everybody it is same. Now see, you can take two projects. First project is based on research methodology. In fact, today's session is how to make a project based on research methodology. And second is you can take a project based on your internship. If you are doing internship or you have done internship in your past, even that topic can be taken. So there are two kinds of projects out of which you have to take one. Either it will be a research-based project, which I'm teaching in this session, or it could be an internship-based project. I require at least 1 or 2 hours to speak on internship-based project. But if you go to my YouTube channel, Fuller Lives, and I have shared with you, I think I shared with Meera ma'am and BAF students, BFM और BBI को तो मैंने भेजा है. इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट है ना उसका भी मैंने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है. एंड वो 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है. ठीक है, यू गो टू फुलर लाइफ, वहाँ पे आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा. तो इनफैक्ट ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है ना इंटर्नशिप वाला, इट इज़ वेरी इजी टू मेक एंड वेरी इंटरेस्टिंग. और ये खाली 60 पेज का है, ओनली 50 to 60 पेजेस. बट ये जो रिसर्च मेथोलॉजी वाला है ना, इट इज अराउंड 80 पेजेस. यूनिवर्सिटी सेज इट शुड बी 80 to 100 पेजेस, बट आई से इवन इफ यू मेक इट फॉर 65 or 70 पेजेस, इट इज सफिशिएंट. यस, इंटर्नशिप वाला 50 या 60 पेज का है. रिसर्च मेथोलॉजी वाला प्रोजेक्ट 80 से 100 पेज का है. बट अगर आपने 65 पेज भी बनाया तो इट इज सफिशिएंट. नोबडी काउंट्स पेजेस. अभी यहाँ पर आ जाओ, टॉपिक कैसे लेते हैं. यूनिवर्सिटी ने सब कुछ दिया है. इनफैक्ट आज का सेशन मुझे लेने का जरूरत नहीं था. अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं ब्लैक बुक से रिलेटेड, बहुत सारे वाइवा वगैरह कैसे देना, सब कुछ. बट देन टू द प्रोजेक्ट टेकन मे बी
The project topic may be undertaken in any area of elective course. So you have lot of elective courses. In fact, if I go up in this particular syllabus, वहाँ पे elective courses मिल जाएगा. आप अपना textbook के पीछे जाओ. The textbook that you are referring, whichever subject it must be, go to the back of that textbook. You will find which are the elective courses and which are the core courses. Is that clear? Okay. For BBI, auditing is an elective course. I don't know about that. For BFM, I think this particular subject, OB is an elective course. I am taking organizational behavior. For TY BFM, this is an elective course. ऐसे 3-4 सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप ले सकते हो. अब ये सब छोड़ दो, अभी यहाँ पर आ जाओ. ये डाउट सबको आता है. सारे बच्चे पूछते हैं सर कि ये हम लोग वर्ड के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? यूनिवर्सिटी इज कैटेगोरिकल. फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? सो द फॉन्ट इज टाइम्स रोमन गाइस. फॉन्ट इज टाइम्स रोमन. 12 फॉर द कंटेंट. तो कंटेंट होगा, आप टाइप करोगे वो 12 होना चाहिए. 14 फॉर द टाइटल. 14 टाइटल के लिए होना चाहिए. लाइन स्पेस इट शुड बी 1.5 फॉर द कंटेंट and 1 for in the table work. देखो सब कुछ दिया है. पेपर साइज A4, it should not be A5 और it should not be A3. मार्जिन दिया यूनिवर्सिटी ने. लेफ्ट में 1.5, लेफ्ट में 1.5 होगा क्योंकि स्पाइरल बेंडिंग होता है. अप डाउन एंड राइट 1 इंच. द प्रोजेक्ट शैल बी बाउंडेड. बाउंडेड माने उसको बाइंड करना है, उसको ब्लैक बुक में बनाना है. और उन लोग ने पेज नंबर भी बताया है. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी फॉर 80 to 100 pages, but don't go on this. 65 pages sufficient. 65-70 page is sufficient. Don't go on the numbers. आगे चलते हैं. ये आपका पहला पन्ना होगा. पहला पन्ना, फर्स्ट पेज आपका ब्लैक बुक. जब आप पहली पेज खोलोगे ना, पहला पेज ये होगा. फॉर्मेट दिया है यहाँ पे. टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. तो लेट्स से किसी ने लिया है फॉरेंसिक ऑडिट, हाउ इज फ्रॉड डिटेक्टेड इन अ फॉरेंसिक वे. यहाँ पर आप लिखोगे. देन अ प्रोजेक्ट सबमिटेड टू, ये सब पूरा फिक्स रहेगा. यहाँ पे बैचलर इन कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो भी आपका कोर्स रहेगा वहाँ पे लिखने का. अंडर द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बाय, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा. जैसे सुरमी वीरा, या फॉर दैट मैटर मिस मीरा राजावत. ऐसे जैसे मीरा मैम का तो PhD हो गया, शी विल नॉट डू इट. एंड नेम ऑफ द गाइडिंग टीचर, राइट द नेम ऑफ योर गाइड. लेट्स से मिस्टर अमित जोरगेकर और लेट्स से मिस्टर अरुण कुमार दुबे. नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज, SK सोमया कॉलेज, विद्या विहार, मुंबई 4077, वो सब. मंथ एंड द ईयर, मार्च 2022. यहाँ पर आप क्या मंथ लिखोगे? मार्च 2022. ये सब आप लिखोगे. ये फर्स्ट पेज है आपका. मतलब जैसे कोई आपका ब्लैक बुक खोलेगा ना, तो ये पहला पेज रहेगा. अब ये पहला पेज आपको सिलेबस में दे दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट गो टू द सेकंड पेज गाइस. यहाँ पे इंडेक्स आएगा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पेज you will write about your project, your name, your guide's name, address, college का वो सब. सेकंड पेज इंडेक्स. जैसे दूसरा पन्ना आएगा उस पर इंडेक्स आएगा. उसमें टेबल, ग्राफ जो भी है वो सब आपका आएगा. सॉरी, जस्ट अ सेकंड. फिर यहाँ पे क्या आएगा? बहुत सारे. हाँ, अभी देखो इंडेक्स में क्या क्या आना चाहिए. इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ये सारे टर्म्स. अब मैं एक काम करता हूँ ऐसा, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ. लेट मी इरेज दिस एवरीथिंग. यस, लेट्स से योर टॉपिक इज डिफाइंड. लेट्स से मैं एक टॉपिक लेता हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट. लेट्स से मैं वो सस्टेनेबली वाला ले लेता हूँ, तो ताकि, या मैं दूसरा ले लेता हूँ. चलो एक टॉपिक यहाँ से उठा लेता हूँ, उसका पूरा इंडेक्स आपको बना के दिखाता हूँ. फर्स्ट स्टेप टॉपिक को डिफाइन करो. सेकंड स्टेप आप इंडेक्स बनाओ. जैसे आपका गाइस, आई एम टीचिंग यू शॉर्टकट. हाँ, अच्छा ब्लैक बुक कैसे बनाने का. वंस यू डिसाइड योर रिसर्च टॉपिक, सेकंड स्टेप इंडेक्स बनाइए. इंडेक्स आपका काम बहुत आसान होगा. इंडेक्स, हर टेक्स्ट बुक के शुरुआत में इंडेक्स होता है ना. तो लेट्स से मैं एक टॉपिक लेता हूँ. ये टॉपिक मैंने किसी को नहीं दिया है. ये फोर्थ टॉपिक दिखता है, फिफ्थ वाला, ये मैंने किसी को नहीं दिया है. तो लेट मी कॉपी इट. एक्सप्लोरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस इन बैंकिंग कंपनीज. ये टॉपिक को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया. इसको मैं छोटा करता हूँ जरा. यस, ऑल ऑफ यू जस्ट लुक एट मी. ये मैं इस टॉपिक का इंडेक्स आपको बना के दिखा रहा हूँ. मेरा ये टॉपिक है, दिस इज माय रिसर्च टॉपिक, एक्सप्लोरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस इन बैंकिंग कंपनीज. अब मैं इसका इंडेक्स बनाऊंगा. मेरा टॉपिक फिक्स हो गया ना, तो मैं उसका इंडेक्स बनाऊंगा. इंडेक्स, तो इंडेक्स में मैं कैसे, इंडेक्स में सब लोग मैं कैसे बनाता हूँ, सब लोग देखो. इंडेक्स के बाद गाइस, इंडेक्स आपने बनाया ना, आपका काम 50% हो गया.
यस, सबसे पहला क्या आएगा आपका? सबसे पहला आपका वो टॉपिक आएगा, वो सब आएगा। बाद में यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स आएगा, एक्नॉलेजमेंट वो उसमें लिख देना एक्नॉलेजमेंट्स, या मैं सीधा चैप्टर 1 पे चलता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक्नॉलेजमेंट्स, बाद में आपका अंडरटेकिंग आएगा, यू विल राइट योर अंडरटेकिंग कि मैंने ये काम खुद से किया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, ये सब आता है यहाँ पे, इनफैक्ट ये सब आ जाएगा। एंड उसके बाद यू कैन जस्ट कम, हाँ यहाँ पे आप लिखोगे एग्जीक्यूटिव समरी, राइट? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव समरी? अब एग्जीक्यूटिव समरी को एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट, अब ये जो एग्जीक्यूटिव समरी होता है ना गाइस, ये कम से कम आपका 20 से 25 लाइन का होना चाहिए। Now please understand what is executive summary. What is executive summary? Please understand. Anybody would like to answer what is executive summary before I give you the answer? Anybody? What is executive summary? Our project Hello? in brief. Explaining our Pardon? project in brief. Okay. Very good. Okay, the lady is correct. See, let's say you have made a project of 80 pages. Can you comprehend in 20 or 25 lines? See, who has time to read your 80 pages? Nobody has time, no. So executive summary, in a nutshell, or in short, you comprehend whatever you have written in 80 pages. So now tell me, executive summary will you write in the beginning or at the end? At the beginning. At the end. See, executive summary, though it is placed, मतलब immediately वो ब्लैक बुक में आगे होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव समरी का जो कंटेंट होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सी, यू कैन राइट योर एग्जीक्यूटिव समरी व्हेन यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट लिख के हो गया है, देन यू कैन राइट इफेक्टिवली अबाउट एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में गाइस, नो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एग्जीक्यूटिव समरी में आप खुद से लिखोगे आपने क्या किया है। हियर यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स द स्टडी exploring the effectiveness of internal audit practice in banking companies attempts to explore the internal audit practices which are prevalent in banking companies. So in this study I have taken 4 public sector banks, and based on the primary data interview we attempted to understand the audit practices which are there in this particular company. So we found, अपने वर्ड में लिखा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, एग्जीक्यूटिव समरी कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके चिपका डालते हैं। रॉन्ग, अटली बटली रॉन्ग। नो, एग्जीक्यूटिव समरी भले ब्लैक बुक के शुरुआत में आता है, लेकिन इसको लिखा जाता है ब्लैक बुक कंप्लीट करने के बाद। तो डोंट एवर अटेम्प्ट टू राइट एग्जीक्यूटिव समरी पहले ही। नो, वंस यू नोट योर फाइंडिंग, सजेशन, कंक्लूजन, बाद में अपने वर्ड में लिखो 20-25 लाइन में कि व्हाट योर प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। इज दैट क्लियर? एग्जीक्यूटिव समरी, इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप पेज नंबर लिखो, एग्जीक्यूटिव समरी लेट से ये पेज नंबर 1 पर आ गया, ठीक है। इसको सब पेज नंबर नहीं दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट, अंडरटेकिंग, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, ये सबको पेज नंबर नहीं दिया जाता, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। ये सब नेसेसरी नहीं, ये सब दिया है आपको। इफ यू सी द सिलेबस, फर्स्ट सेकंड पेज पे क्या आएगा वो सब आएगा, ठीक है। ये आपका पेज नंबर, इंडेक्स में पेज नंबर प्रॉपर होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव समरी ये आपका आ गया है यहाँ पे, क्लियर। अब एग्जीक्यूटिव समरी के बाद यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू चैप्टर नंबर 1, राइट? ऐसे चैप्टर नंबर 1 ऐसे लिखो, चैप्टर नंबर 1। अब मेरा चैप्टर नंबर क्या होगा? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.1, बताओ मैं क्या लिखूँ इंट्रोडक्शन में? आई विल जस्ट टॉक अबाउट ऑडिट, जस्ट आई विल राइट ऑडिट एंड ऑडिटिंग। ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, या यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। ऑडिट कब आया, किसने लाया, पहले ऑडिट कहाँ पे होता था, वो सब। बाद में आपने 1.2 में आपने लिखोगे, देखो मेरे को जो मन में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। देन यू विल टाइप अबाउट audit practices 1.3, ऐसे लिखना है। Then you can talk about
kinds of audit or types of audit, etc. Then 1.4, you can talk about audit in banks. Then 1.5, you can talk about internal audit practices in banks. Internal audit in banks. ऐसे करके आपको चैप्टर्स बनाने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर. क्या बोल रहा हूँ? तो चैप्टर नंबर 1 इज फिक्स्ड. चैप्टर नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन. So write this way, chapter ONE1, put 2 dots, introduction. So 1.1 historical overview of audit, 1.2 audit practice, 1.3 types of audit. तो पूरा ऑडिट के बारे में आप उसको लिखो. मतलब चैप्टर नंबर 1 कोई भी पढ़ेगा ना तो उसको पूरा ऑडिट के बारे में पूरा पता चल जाएगा. बात समझ में आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा अपना सिलेबस देखते हो गाइस, तो यहाँ पे दिया है, देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आना चाहिए. अब ये थोड़ा अलग जा रहा है, मैंने कुछ अलग बताया, यहाँ पे कुछ अलग है. देखो क्या है. एंड दिस चैप्टर selection and relevance of the problem. So you can, अगर आपको मेरा मेथड है कि आप उसके अंदर ऑडिट से रिलेटेड लिखो. अगर वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप लिखो कि स्ट्रेट अवे कम टू इंटरनल ऑडिट रेलेवेंस. देखो मैं सिचुएशन देख करके बनाऊंगा. तो मेरा पहला आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम. इंटरनल ऑडिट क्यों रेलेवेंट है? व्हाई इंटरनल ऑडिट इज रेलेवेंट? गिव आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पर आप इसका पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करोगे. व्हाई इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी. गिव योर आर्ग्यूमेंट्स. अभी आपको बहुत जगह से आर्ग्यूमेंट मिलेगा इंटरनल ऑडिट का, बहुत सारे जगह से मिलेगा, उसको पैराफ्रेज करके आपको लिखना पड़ेगा. 1.2 आ जाओ. सेकंड क्या बोल रहा है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो यू कैन टॉक अबाउट व्हाई origin of internal audit. Origin of internal audit. Yes. 1.3 हो रहा है ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द स्टडी. अपने स्टडी का प्रोफाइल दो. सो प्रोफाइल ऑफ द स्टडी. अपने स्टडी के बारे में एक पेज लिखो कि आपका स्टडी क्या है, क्या कर रहा है, क्या एक्सप्लोर करने वाला है, वो सब. ऐसे भी कर सकते हो, या जनरल आप पूरे ऑडिट के बारे में पूरा चैप्टर 1 में डाल दो. अगर आपका इंटरनल ऑडिट है तो पहले चैप्टर में पूरा इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड आप लिखो. चैप्टर 1 आपका मतलब कम से कम इसको ना 1.4, 1.5, 1.6 तक लेके जाओ. मैक्स टू मैक्स 1.7, 1.8 तक. उससे ज़्यादा मत खींचना. डोंट पुल इट टू मोर देन 1.8. चैप्टर 1 के अंदर सब चैप्टर्स होंगे, लेकिन एंड बी वेरी स्पेसिफिक वो क्या होगा. अब यूनिवर्सिटी इज वेरी क्लियर. Chapter number 1 should be introduction only, related to your study. Now chapter number 2, guys, again it is fixed by university. You can't alter this. Chapter 2 पे यहाँ पे आएगा research methodology आएगा. Research methodology. Now pay attention. This is a very important chapter, guys. So chapter number 2 is fixed. Now this is a make or break chapter. ये चैप्टर में आपका ईमानदारी पता चलता है, आपने वाकई में काम किया है कि नहीं किया है, यहाँ से वो डिटेक्ट होता है. जिस तरह फॉरेंसिक ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्ट होता है, वैसे स्टूडेंट्स का फ्रॉड इस चैप्टर से डिटेक्ट होता है. आई कैन सिंपली सी योर रिसर्च मेथोलॉजी एंड आई कैन कमेंट वेदर यू हैव डन अ जेन्युइन वर्क और नॉट. इमेजिन जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज इवैल्यूएटिंग अ PhD वर्क एंड बाय लुकिंग एट रिसर्च मेथोलॉजी ओनली आई जस्ट केम टू द कंक्लूजन दिस लेडी इज ब्लफिंग एंड शी हैज नॉट डन अ जेन्युइन वर्क. मेरे मन में हुआ कि मैंने उसको कमेंट्स दिया कि हाउ टू मेक इट इम्प्रूव, बिकॉज का एक्सटर्नल वाइवा था. आई वॉज नॉट वांटिंग टू बी वेरी हार्श ऑन हर, बट उसका रिसर्च मेथोलॉजी में देख के समझ गया था शी इज जस्ट कुकिंग एंड शी इज जस्ट टेलिंग अ फेरी टेल एंड शी कैन नॉट बी टेकन सीरियसली. Nobody will waste time behind her because she has not done a genuine work. But then we camouflage and we don't tell the reality. I said do this and that and try to improve it because since your viva is there and you should get a PhD degree, do this and do that. उसको वही बताया गया, ज़्यादा हमने उसको बोला नहीं, बट ये चैप्टर से पूरा समझ में आता है. तो अगर आप रिसर्च मेथोलॉजी देखोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे 2.1 लिखने का. 2.1 में आप क्या लिखोगे? 2.1 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी लिखोगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. ऑब्जेक्टिव्स 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लीज. योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी मोर देन 5. Some people write 10 objectives. Is it possible to achieve 10 objectives through your 80 pages? People who write PhD thesis, they don't take more than 6 or 7. But
बैफ का स्टूडेंट है 10 ऑब्जेक्टिव लिखा है, बीबीआई का स्टूडेंट है 15 ऑब्जेक्टिव लिखा है, बीएफएम का स्टूडेंट है 7 ऑब्जेक्टिव, मतलब लेट से 8 ऑब्जेक्टिव लिखा है। नहीं, हियर आई एम सेइंग ऑब्जेक्टिव शुड बी 4 to 5. Who do PhD thesis they take 6 or 7. तुम लोग का अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स 5 से ज्यादा मत लो। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव, चलो मेरा ही टॉपिक ले लो, मैं इसमें 5 ऑब्जेक्टिव लिख के दिखाता हूँ। नमन ना एक्चुअली यहाँ पे ये, चलो मैं वर्ड फोल्डर पे लिख के दिखाता हूँ, ये वर्ड फाइल है मेरा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स लिख के दिखाता हूँ, 4 ऑब्जेक्टिव्स लिख के दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखा जाता है। ऐसा इसी अपना स्लो है। यस, चलो मैं ऑब्जेक्टिव्स लिखता हूँ। Objectives of the study. Hope you are able to see my screen, guys. Objectives of the study. Yes. And number 1 देखता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हाँ, 2 ऑब्जेक्टिव्स 2 करके लिखते हैं, 2 करके लिखते हैं। तो to explore just a second, this is hanging. To explore the audit, to explore the internal audit practices in select banks, in select private sector banks, in select private sector banks, in banking companies. प्राइवेट सेक्टर बैंक भी लिख सकते हो, उसको प्राइवेट बैंकिंग कंपनी में। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव का फिर आंसर देना पड़ेगा आपको कंक्लूजन वगैरह में कि ऑब्जेक्टिव आपने पूरा किया है क्या। जब आपने बोला है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस, तो व्हाट हैव यू एक्सप्लोर्ड? डू द आंसर, पीपल विल आस्क यू। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी इश्यूज, the regulatory issues in internal audit in banks। ये वगैरह का आएगा क्योंकि बैंक्स के अंदर ना कुछ आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड, ठीक है। बाद में टू स्टडी दी इंटरनल कंट्रोल। अभी देखो इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल मिलता जुलता है ना। इंटरनल कंट्रोल क्या है ऑडिट के बच्चों को पता रहेगा, मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट एन ऑडिट लेक्चर। टू स्टडी द इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशनल इन बैंक्स, ठीक है। बाद में लास्ट, टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस। देखो मैंने ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव्स ले लिए। प्लीज ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स 4 या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5। छठवा तो जाओ ही मत आग बंद करके। नेवर टेक 6 ऑब्जेक्टिव, टेक 4 और 5 बस। ये देखो मेरे मन में जो था मैंने वो लिख दिया है, और ये ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, इसको मुझे अचीव करना है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टी वाई बैफ पास होना है, तो बाद में मार्च में पास होते हो ना, वैसे जब आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं ना उसको अचीव करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स देन यू हैव रिटन फॉर द नेम सेक, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स के बाद गाइस यू कैन टेक हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस कैसे लेते हैं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, यू कैन ओनली फ्रेम हाइपोथेसिस इन योर स्टडी व्हेन यू हैव क्वांटिटेटिव डेटा। और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये अभी आपको समझेगा नहीं, ये बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को भी नहीं समझता है। So I am not going to do I conduct lot of workshops on hypothesis testing. If you go to my channel Fulalites, आपको वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के प्रोसीजर पता चल जाएंगे। बट हाइपोथेसिस आप तभी लोगे जब आपने कोई सर्वे वगैरह किया है, आपके पास कुछ क्वांटिटेटिव डेटा है, या आपने मनी कंट्रोल ऐप से या फॉर दैट मैटर किसी और ब्लूमबर्ग के साइट से आपने कुछ क्वांटिटेटिव डेटा निकाला है। अभी हाइपोथेसिस कैसे होता है देखना गाइस ना। अभी हाइपोथेसिस के लिए आप लोग एक्सेल का उपयोग करो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हाइपोथेसिस फ्रेम करके भी बता रहा हूँ बिकॉज ये सेशन में मैं आपको गाइडेंस दूंगा हाउ टू फ्रेम हाइपोथेसिस। जस्ट अ सेकंड, मैं एक्सेल खोल रहा हूँ। एक्सेल में हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। एंड एवरी स्टूडेंट्स वेदर बीबीआई वेदर बीएफएम और बैफ यूज एक्सेल फॉर योर एनालिसिस पर्पस। अभी देखो ये मेरा एक्सेल है,
लेट्स से हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लेट्स से मुझे स्टडी करना है द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड लेट्स से एक कॉलम में इन्फ्लेशन है और एक कॉलम में लेट्स से मैं ले लूँ कि लेट्स से BSE इंडाइसेस और निफ्टी NI FT निफ्टी इंडाइसेस। देखो मेरे पास दो कॉलम है गाइस, कैन यू सी दिस कॉलम? हेलो, कैन यू सी दिस कॉलम? आई हैव टू कॉलम्स। sir. हाँ, एक कॉलम में इन्फ्लेशन का रेट है और एक कॉलम में निफ्टी का इंडाइसेस है। come on, my PC is angry on me. Okay, just a second. See, हाँ, so let's say I have taken action. मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में बता रहा हूँ कि हाइपोथेसिस कैसे लेते हैं। हाइपोथेसिस लेने के लिए आपके पास एक्सेल के कॉलम्स में कुछ डेटा होने चाहिए। हाइपोथेसिस एक्सेल में ही। हाँ, एनी क्वेरी, एनीबडी? जस्ट अ सेकंड, दिस पीसी इज लैगिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यस, लेट्स से मैंने कुछ पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन ले लिया, या लेट्स से 2014 से, मोदी साहब 2014 से आए थे, तो 2014 में 6% इन्फ्लेशन था, 2015 में 5 हो गया, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। ये मैंने इन्फ्लेशन ले लिया और फिर मैंने निफ्टी का इंडाइसेस लिया, क्लोजिंग इंडेक्स, माने 31 दिसंबर को निफ्टी कितने में बंद हुआ था। 31 दिसंबर हर कैलेंडर ईयर के एंड में निफ्टी कितने में बंद हुआ। तो लेट्स से 2014 में ये 30,000 चल रहा था, बाद में लेट्स से ये 32 हो गया 2015 के रेंज में, फिर लेट्स से ये वापस 26,000 पे आ गया। लेट्स एनी रैंडम नंबर आई एम टेकिंग, बाद में ये 35 हो गया, लेट्स से ये 50,000 पे आ गया। नहीं, निफ्टी आप सॉरी, ये निफ्टी का तो मेरे ख्याल से 12-13 के रेंज में चल रहा है। BSE चल रहा है आपका, बट ऐसे ही मैंने नंबर ले लिया है, डोंट बिलीव इन दिस नंबर। ये 32 हो गया, ये अगेन 31 हो गया, ये ले लो सब 29 हो गया। तो एक्सेल के कॉलम में इंफॉर्मेशन होगा तभी आप टेस्ट कर पाओगे। नाउ यू वांट टू स्टडी, आपको इन्फ्लेशन और निफ्टी इंडाइसेस के बीच का रिलेशन स्टडी करना है। क्या इन्फ्लेशन में और निफ्टी के इंडाइसेस में कोई कोरिलेशन है क्या? मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंडाइसेस बढ़ता है क्या, या जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंडाइसेस पे क्या असर पड़ता है? नाउ यू वांट टू स्टडी द नेक्सस और द कोरिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड निफ्टी इंडाइसेस। तो हाउ शुड यू स्टडी? तो पहले हाइपोथेसिस फ्रेम करो। मैं क्या हाइपोथेसिस फ्रेम करूंगा, जरा यहाँ पे देखना, मैं हाइपोथेसिस बोलूंगा। अभी देखो, जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, उसको H0 से डिनोट करते हैं, H0 क्या बोलेगा? 2 मिनट में इसको इरेज करता हूँ, जस्ट सेकंड। नल हाइपोथेसिस क्या होगा गाइस? मैं बोलूंगा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड index. If you see this statement, null hypothesis में कभी भी no word आता है, no relationship. Null hypothesis, it is denoted by H0. और यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक है इन्फ्लेशन इज 1 वेरिएबल, उसका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकता है। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, RBI का वेबसाइट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का वेबसाइट है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा मिलता है। एक वेरिएबल मेरा इन्फ्लेशन है और दूसरा मेरा निफ्टी इंडाइस है। तो जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने जाते हो ना, तो आपके पास ऐसा कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए। बिना क्वांटिटेटिव डेटा के यू कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस। तो मेरा क्लेम क्या है? मैं बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन और निफ्टी इंडेक्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H1। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H1, उसमें होगा देयर इज अ रिलेशनशिप, इसका उल्टा,
null hypothesis का उल्टा will become alternative hypothesis or alternate hypothesis, one and the same. So there is a relationship between inflation. एक्सेल में डेटा नहीं हुआ, यू कांट टेस्ट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए एक्सेल में ही डेटा चाहिए, वो भी कॉलम में. तो सोचो आप सर्वे करोगे तो कॉलम में डेटा कैसे आएगा. बात समझ में आ रहा है? अब देखो मैं एक्सेल में हाइपोथेसिस टेस्ट करके दिखाता हूँ. ये रहा मेरे पास दो डेटा. अब मुझे जानना है कि इनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है. तो यहाँ पर एक्सेल में डेटा टैब होता है, डेटा टैब. आई क्लिक ऑन दिस डेटा टैब. अभी ये बहुत स्लो क्लिक होता है बाबा. ये तो बाबा आजम के जमाने का मेरा पीसी है. तो डेटा टैब मैंने क्लिक किया. यहाँ पे डेटा एनालिसिस है. यहाँ पे डेटा एनालिसिस. यस, डेटा एनालिसिस. ये क्लिक करोगे तो एडजस्ट कर. just so excel में ना, see what I will say no, all my students, आप खाली YouTube पे वीडियो देखो how to test hypothesis in excel. सब लोग how to test hypothesis in excel. तो excel को यूज करके ही आपको hypothesis टेस्ट करना है. और excel को यूज करके ही आपको हिस्टोग्राम, चार्ट्स, बाई डायग्राम ये सब बनाना है. एक्सेल में ड्राइंग का ऑप्शन होता है ना. एक्सेल में डेटा डालो, ड्रॉ करो, उसको उठा के वर्ड में लेके जाओ, आपका एनालिसिस वगैरह बन जाएगा. ये देखो मैंने यहाँ से आया, मैंने यहाँ पे डेटा एनालिसिस को टिक किया. अब मुझे ये दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना है. देखो मैंने ये डेटा एनालिसिस टिक किया तो ये डब्बा आ गया. अब मुझे यहाँ से कोरिलेशन चलना है. मुझे दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करना है ना. तो यहाँ पे मेरा टेस्ट क्या होगा, कोरिलेशन टेस्ट. ये देखो ये कोरिलेशन है. मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कोरिलेशन. ओके. अगर मैं ओके करूंगा तो इनपुट क्या है मेरा, ये मेरा इनपुट रेंज है. ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक आएगा इनपुट. हाँ, ये इनपुट मैंने कर दिया. अब मैं लेबल चाहिए. यस. आउटपुट मुझे कहाँ चाहिए, आउटपुट मुझे यहाँ पे चाहिए. ठीक है. अब मैं ओके करता हूँ. देखो एक्सेल में हाइपोथेसिस टेस्ट होता है. अभी देखो यहाँ पे क्या पता चला. अभी देखते हैं कि इन्फ्लेशन और निफ्टी इंडाइसेस में क्या कोरिलेशन. ये देखो ये है कोरिलेशन फिगर. इसको मैं 2 डिजिट में करता हूँ. इतना बड़ा डिजिट समझ में आता नहीं है, इसको मैं 2 डिजिट में करता हूँ. कितना कोरिलेशन है, मतलब इन्फ्लेशन और निफ्टी इंडाइसेस में पॉजिटिव 0.42 का रिलेशनशिप है. मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो निफ्टी विल राइज. मतलब दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब दोनों के बीच का जो आर है, आर दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज 0.42%. मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट. मेरा नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, नो रिलेशन, रिजेक्ट. इनफैक्ट रिलेशनशिप है 0.42 का. याद है आप लोग डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप आपने स्टडी किया था 11th या 12th स्टैंडर्ड में. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा. इनवर्स रिलेशनशिप है. If price will rise, demand will fall down, and if price will fall, demand will rise. So you all have studied the relationship between price and demand. So similarly, can you study the relationship between inflation and Nifty indices, or can you bring few more variables? Relationship between national income and inflation and Nifty indices. देखो जितने वेरिएबल आप डालोगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चलेगा. बात समझ में आ रहा है. So you can bring some new variables. मैंने 2 वेरिएबल ले लिया, inflation and Nifty indices. You can take कंपनी का पी रेशियो एंड शेयर प्राइस. कंपनी का 10 साल का पी रेशियो ले लो एक्सेल में. यहाँ पर किसी भी 2 कंपनी का, जैसे लेट्स से आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो किसी 2 कंपनी का, लेट्स से कंपनी ए एंड कंपनी बी. तो यहाँ पर आप कंपनी ए ले लो. लेट्स से कंपनी आपके अमित जोड़गे का सर एक्सेल का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, उनसे जो आप एक्सेल वगैरह सीखना. अमित सर बहुत अच्छा यूज़ करते हैं एक्सेल का. इसको मर्ज कर देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे कंपनी ए ले लिया और यहाँ पे मैंने कंपनी बी ले लिया. हाँ, यहाँ पे कंपनी बी. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग देखो. तो यहाँ मैंने ये एक काम करता हूँ, मैं ये इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे ले लेता हूँ, कंट्रोल बी. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ. ये मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया ना क्या है. तो मैं फॉर्मेट क्लियर ऑल कर देता हूँ. यस.
अब आप क्या करो, कंपनी ए का 10 साल का पी रेशियो ले लो ना, 2000 लेट्स से अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2011 से 10 साल का पी रेशियो ले लो, कंपनी बी का 10 साल का पी रेशियो ले लो और उनका शेयर प्राइस ले लो और दोनों के बीच का कोरिलेशन स्टडी करो, है ना? ऐसे आप कर सकते हो ना। तो लेट्स से ये पी रेशियो यही याद लो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल जी, यहाँ पी रेशियो ले लो और यहाँ पे ईपीएस ले लो, अर्निंग पर शेयर। अगेन यहाँ पे पी ले लो और यहाँ पे ईपीएस ले लो कंपनी बी का। अब यहाँ पे ईयर ले लो 2000 लेट्स से 11 2012 2013, इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, पूरा 10 साल का ले लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं 2021 तक ले लेते हैं। अब कंपनी ए का पी रेशियो निकालो, कंपनी ए का ईपीएस निकालो, ईयर वाइज ना पूरा। सिमिलरली ये दोनों का निकालो। एक्सेल में डेटा जब आ जाएगा, कोरिलेशन लगाना है, कोरिलेशन लगाओ, दोनों का पाई डायग्राम दिखाना है, पाई डायग्राम दिखाओ, हिस्टोग्राम दिखाना है, हिस्टोग्राम दिखाओ, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट कर लो और कमेंट करो कि दोनों में से किसने अच्छा किया, कंपनी ए ने अच्छा किया या कंपनी बी ने अच्छा किया। एक्सेल में देखो, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो एक्सेल को ही टच करना है गाइस, बिना एक्सेल के हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरे पीसी में अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एसपीएसएस है, फिर यहाँ पे आर है, मिनी टैब है, बहुत सारे हैं। मैं आर का बहुत यूज करता हूँ, आर में आपको भी सिखाने वाला नहीं हूँ, बहुत अलग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। यस, तो हाइपोथेसिस ऐसे होता है। तो आ जाओ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स 4 से 5, 2 से 3 हाइपोथेसिस से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ले लो हाइपोथेसिस, स्कोप ऑफ द स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ले लो स्कोप ऑफ द स्टडी। स्कोप ऑफ द स्टडी में क्या होगा, व्हाट इज स्कोप ऑफ द स्टडी? व्हेन आई से स्कोप ऑफ द स्टडी, इट मींस द बाउंड्री कंडीशन ऑफ माय स्टडी। अभी लेट्स से स्कोप क्या होता है, स्कोप माने मेरे स्टडी में क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। अभी लेट्स से मेरा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस इन बैंकिंग कंपनीज। तो जो गाइड ने आपको क्वेश्चन पूछा, अरे आपने इंटरनल ऑडिट स्टडी किया, आपने एक्सटर्नल ऑडिट क्यों नहीं स्टडी किया, या आपने पब्लिक सेक्टर बैंक का आपने ऑडिट क्यों नहीं स्टडी किया? तो बोलने का सर दैट इज नॉट इन माय स्कोप, जो मेरे स्कोप के बियॉन्ड है। तो यू शुड राइट द वर्ड में लिखना पड़ता है अपने वर्ड्स में, द स्कोप ऑफ द स्टडी इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस इन बैंक्स। देखो ऐसा लिखना है, द स्कोप ऑफ द स्टडी इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस इन बैंक्स वेयर वी हैव टेकन two private sector companies and we have tried to study their internal audit procedures and other regulatory issues related to that. तो स्कोप ऑफ स्टडी ये डिफाइन करता है कि आपके स्टडी में क्या इंक्लूडेड है, तो ऑटोमेटिकली इससे पता चल जाएगा क्या एक्सक्लूडेड है। तो कभी कभार आपको गाइड क्वेश्चन पूछेगा, आपने ब्लैक बुक में ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, ये नहीं किया, तो बोलने का सर the scope of my study is related to internal audit practices that do in banking companies and I have taken 2 private sector banks. What you say is interesting, but public sector bank, their audit practices and statutory audit, external audit, that is not within the scope of my study. आप जो बोल रहे हो ना स्कोप वगैरह, आप जो बोल रहे हो ना वो सब मेरे स्कोप के बियॉन्ड है। मेरा जो स्टडी है वो खाली इंटरनल ऑडिट के बारे में है और बैंकिंग कंपनीज के बारे में, दैट्स इट। मतलब आप उसको ये बता रहे हो कि इससे रिलेटेड सवाल पूछो। तो जो आपका स्कोप ऑफ स्टडी होता है ना, दायरा, उसके बियॉन्ड आप नहीं जाते हो। अभी यहाँ पर मैं देखो, जब मैं इंटरनल ऑडिट बोल रहा हूँ तो उसका इफेक्टिवनेस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। मैं एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में ज़्यादा बोलूंगा ही नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में ज़्यादा बोलूंगा ही नहीं, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टू बैंकिंग कंपनीज। तो व्हाट आई हैव टू डू विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, व्हाट आई हैव टू डू विद आरबीआई, थोड़ा बोड़ा उनके बारे में लिखूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ द स्टडी आ गया। फिर बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, आपके स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी जरा कान खोल के सब लोग सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग सुनना। आपके स्टडी से सोसाइटी को क्या फायदा, आपके स्टडी से जो प्रैक्टिशनर्स है, जो बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं, इंटर ऑडिट कर रहे हैं, उससे क्या फायदा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कभी भी दूसरों के लिए लिखा जाता है कि मेरी ये जो स्टडी है, इट हैज द कैपेसिटी टू एनलाइटन द रीडर्स and the practitioners about some of the nuances involved in the internal audit practices. बात समझ आ रहा है? Significance of the study ये दूसरों के लिए लिखा जाता है कि आपके स्टडी का फायदा क्या है। मैं आपको सच्ची बताऊं, ज्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में स्टडी होता है उनका सिग्निफिकेंस कोई विशेष नहीं होता। प्लीज राइट कि आपके स्टडी से क्या फायदा है सोसाइटी को, इसका क्या भला होगा आपके ब्लैक बुक को पढ़ के।
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड टू परस्यू अ ब्लैक बुक। शायद ये आज का सेशन कुछ लोगों के इमेजिनेशन को इग्नाइट करे। जैसे अद्वैत का टॉपिक है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, अद्वैत लिख सकता है कि बाबा किस तरह से सोसाइटी को बेनिफिट होगा, किस तरह से एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा मेरे ब्लैक बुक से। He can write, but provided he has added the rigor in his research. समझ में आ रहा है? See, I am a hardcore researcher. I am a hardcore academician as well as very hardcore researcher. तो मैं हर स्टडी को सब नाम के लिए नहीं करता हूँ। मैं जो भी स्टडी करता हूँ वो नाम के लिए नहीं करता हूँ। I always try to solve a problem. मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ guys. अभी सब लोग सुनना, ये आपको समझ में आ जाएगा। नवंबर 2018 मेरे रियल लाइफ की घटना है और मैंने इसको मेरे एक लिंक्डइन पे डाला है। नवंबर 2018 मेरी फैमिली में सब लोग बीमार पड़ रहे थे। माय फादर डाइड August 2, 2018 और मेरा 18-19 साल लाइफ का बहुत गंदा साल गया है। तो 2018 साल में माय फादर डाइड, मेरे घर में सब बीमार पड़ गए। मेरी माँ को टाइफाइड, मेरी बहन को टाइफाइड, सब बीमार, और सबको मैं हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर रहा था और सबको ठीक करके ला रहा था। आई कुड नॉट प्रोटेक्ट माई फादर अनफॉर्चुनेटली। अब हुआ ये ना कि मुझे उसी साल गाँव जाना पड़ा नवंबर के महीने में। तो मैं अक्टूबर में अपना हॉस्पिटल में गया और इनफैक्ट जिस दिन मेरा ट्रेन था उस दिन मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में थी, तो उसको मैं डॉक्टर को सब बात करके पूरा दिन हॉस्पिटल में ही था कल्याण में। एंड देन लाइक रात को मेरा 11-12 बजे के आसपास ट्रेन था, ट्रेन भी 1 घंटा लेट, रात को 1 बजे ट्रेन आई। तो मैं गाँव गया और जैसे ही मैं मेरे गाँव पहुँचा ना यूपी साइड, तो वहाँ पे मैं जैसे मैंने रेलवे स्टेशन पे जब मैं उतरा और मैं मेरी मासी की तरफ जब मैं गया ना, मेरे को बुखार हो गया और ऐसा बुखार, वो बुखार मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मेरे घर में लाइन लगी थी, सब बीमार पड़ रहे थे और नवंबर 2018 ऐसा मेरे को बुखार हुआ, बुखार छोड़ ही, जैसे मैंने रेलवे स्टेशन उतरा और मेरे मासी के आ गया, वो बुखार मेरे को अंदर से जकड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा। और मैं लेके गया था, कुछ 6 या 7 दिन का समय था, मुझे कुछ गाँव में मेरा कुछ ज़मीन जायदाद का काम था, वो सेटल मेरे को करना था। 7 दिन में से मैं 6 दिन तो बेड पे ही लेटा था और 7वें दिन मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ा और वो वायरस मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। तो मुझे लोगों ने वहाँ के लोकल अस्पताल होती है, गांव देहात में से अस्पताल होती है, वहाँ पे एडमिट कर दिया। और देखो वहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा। एक अच्छा रिसर्चर को अपने आँख खुले रखने चाहिए और मैं रिसर्चर हूँ। उस अस्पताल में मैं लेटा तो मुझे वो सिरिंज विरिंज लगाया गया, इंजेक्शन वगैरह, वो सब ग्लूकोज का बॉटल वगैरह। तो एक बेचारी नर्स थी, नर्स, वो सबको चिल्ला रही थी इस हॉस्पिटल में कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ये हॉस्पिटल में छोड़ दूंगी, यहाँ पे लोग बरोबर नहीं है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो गाली दे रही थी और वो मेरे हाथ में सुई लगा रही थी। तो मैं उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहा था, ये बहुत बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत बेचारी फ्रस्ट्रेटेड। वो बोलती मेरे हाथ में बहुत हुनर है, मेरे को कोई भी काम पे रखेगा, नौकरी का कमी नहीं है, चिल्लम चाली पूरा कर रही थी, रो रही थी। तो मेरे को उस नर्स की हालत पर मेरे को दया आई। तो मैं क्या किया, ठीक है मैं ठीक हो गया, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो मैंने बोला यार क्या करना चाहिए, बेचारी ये नर्स, मतलब इन लोग का हालत बहुत ख़राब है। ऐसे बहुत सारे अस्पताल होते हैं, नर्स लोग पे बहुत प्रेशर आता है, ये एक स्टडी का टॉपिक है। तो मैंने उस लेडी का प्रॉब्लम स्टडी किया और भगवान करे किसी खुल जाए मेरा, एक आपको रिसर्च पेपर में मेरा दिखाता हूँ जो पब्लिश हुआ है एक यूजीसी केयर लिस्ट में और वो गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल है। तो मैंने उस नर्स की समस्या को देखा और उससे रिलेटेड मैंने एक रिसर्च टॉपिक फ्रेम किया और बम्बई के 40 अस्पताल से मैंने डेटा कलेक्ट किया, फीमेल नर्सेस से ही, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट फ्लाइट ऑफ दैट फीमेल नर्स। और बम्बई के 40 अस्पताल से मैंने फीमेल नर्स की समस्याओं को स्टडी किया और एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखा जो बहुत जगह रिजेक्ट होने के बाद सितंबर में NMIMS मैनेजमेंट रिव्यू में पब्लिश हुआ। रिजेक्ट हुआ, 3 जगह मेरा पेपर रिजेक्ट हुआ। मतलब लोग बोले ऐसा नहीं है, ये तुम्हें, तेरा फाइंडिंग गलत है, तेरा मेथोलॉजी नहीं सही है, तूने ये किया वो किया, लोगों ने देखा, रिजेक्ट किया। लेकिन फाइनली वो पेपर 1.5 साल के बाद वो पेपर पब्लिश हुआ अभी सितंबर 2021 में। और इस पेपर ने मुझे बहुत खुशी दिया क्योंकि इस पेपर से मैंने नर्सेस लोग के लाइफ के अंदर झांका है और मैंने सोसाइटी को एक सोल्यूशन दिया है, सिग्निफिकेंस बताया है कि मेरे स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है, कि मेरे स्टडी से सोसाइटी को क्या बेनिफिट। तो मैंने डॉक्टर्स लोग के लिए उसके अंदर लिखा है कि डॉक्टर्स शुड प्रोवाइड वेरी गुड एनवायरनमेंट टू नर्सेस, particularly female nurses, because female nurses have dual career. ये नॉट इंडियन फीमेल नर्सेस घर का काम भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अस्पताल में भी वो संभालने का ही काम कर रही है। तो मैंने एक बहुत अच्छा पेपर लिखा, पब्लिश हुआ 1.5 साल के बाद। मेरे BBI स्टूडेंट्स उस समय के वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, रितिका का बैच था और वो बहुत अच्छे लोग का बैच था। उन्होंने पूरे बम्बई के 40 अस्पताल को कवर किया, डेटा कलेक्ट हुआ, रिसर्च पेपर लिखा। वो गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल है। कंप्यूटर मेरा स्लो है, मुझे माफ़ करना, मैं उसको
शायद दिखा नहीं पाऊंगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी कभी भी दूसरों के लिए लिखा जाता है कि आपकी स्टडी से सोसाइटी को बेनिफिट क्या है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद एक चीज और है, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी गाइस। अब मैं आपको इस पे एक जोक बताता हूँ, जोक। ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मोर हाफ एन आवर एंड आई एंड दिस सेशन। आई नो इट्स वेरी पेनफुल टू यू। हर स्टडी के अंदर लिमिटेशंस होता है। एक बार यूनिवर्सिटी का गाइड आया था, उसने मेरे एक बीबीआई के बच्चों को पूछा कि डिड यू फेस एनी लिमिटेशंस व्हाइल यू वर डूइंग दिस स्टडी? क्या आपको कोई लिमिटेशन फेस हुआ, आपने स्टडी किया? उस लड़की ने बोला सर नो लिमिटेशंस। बाप रे, मतलब इस लड़की ने काम ही नहीं किया है। हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे थे, देखो इवन जो पीएचडी रिसर्च करता है गाइस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईआईटीज आईएम्स अच्छे अच्छे जगहों पर है, उनकी जब मैं रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ सब में लिमिटेशंस होता है। क्या आपके ब्लैक बुक में लिमिटेशन नहीं होना चाहिए? और लिमिटेशन आपको नहीं महसूस होगा? देखो हर स्टडी में लिमिटेशंस होता है। अभी जैसे मेरा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस, तो क्या आपको लगता है मैंने पूरा इंटरनल ऑडिट ये पूरा सब कुछ बता डाला मैंने? नहीं। अभी लिमिटेशन ये होगा कि जब आप डेटा कलेक्ट करने गए, सामने वाले ने आपको भगा दिया, डेटा नहीं दिया। लिमिटेशन ये हो सकता है कि आपने खाली बैंकिंग कंपनी के ऊपर ही बोला है और ऊपर से आपने खाली 2 बैंक को स्टडी किया है। अब 2 बैंक के फाइंडिंग्स के बेसिस पर क्या आप इंडिया के सारे बैंक पे कमेंट कर सकते हो? देयर कुड बी लिमिटेशन विद सैंपल, देयर कुड बी लिमिटेशन विद साइज, देयर कुड बी प्रॉब्लम विद योर डेटा। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो प्लीज एडमिट करो कि आपके स्टडी में लिमिटेशन है, उसको लिखो वहां पर। मैं अपना एक रिसर्च पेपर मीरा मैम को भेजूंगा उस नर्सेस के ऊपर, जो मैंने उस बेचारी रोती हुई नर्स को देखा था, मैं बीमार था अस्पताल में, और उसके लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सारे फीमेल नर्सेस को स्टडी किया। वो मेरा पहला पेपर है फीमेल नर्सेस के ऊपर। तो मैं मीरा मैम को भेजूंगा, मीरा मैम बैप वालों को भेजेगी, बीएफएम और बीबीआई वालों को पेपर में भेज दूंगा। क्या ओके? तो लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी ये टॉपिक है आपका चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके लिखो चैप्टर 3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर बोलते हैं इसको हम लोग, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं गाइस? सब लोग ध्यान देना। यहाँ पे ना गूगल में जाके गूगल स्कॉलर टाइप करो, ये गूगल है गूगल, और यहाँ पे टाइप करो गूगल स्कॉलर। या मैं आज शाम को मैं 2 वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए, एक आपका लिटरेचर रिव्यू और एक हाउ टू आइडेंटिफाई गुड टॉपिक। देख लेना वहाँ पे, अभी यहाँ पे शायद खुल रहा नहीं है, सब बंद करना पड़ेगा तब खुलेगा। तो गूगल स्कॉलर पे जाके ना आप रिसर्च पेपर अच्छे अच्छे डाउनलोड कर सकते हो गूगल स्कॉलर पे। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं खुल रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंट। यहाँ पे जस्ट गो टू गूगल स्कॉलर गाइस, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट, स्कॉलर या रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट पे जाओ। रिसर्च गेट पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा, बट गो टू गूगल स्कॉलर और वहां से कुछ अच्छे अच्छे पेपर डाउनलोड करो। लिटरेचर रिव्यू में गाइस यू हैव टू मेक ऑथर्स फाइट विद ईच अदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कोई गुप्ता एंड सिंह है, उन लोगों ने एक स्टडी किया था 2015 में, और उन लोगों ने पाया कि बैंकिंग कंपनी में इंटरनल ऑडिट अच्छे से नहीं होता है, मतलब उनको कुछ फॉल्ट लगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, डोंट टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग मेनी थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग आल्सो। तो लेट्स से गुप्ता एंड सिंह, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुप्ता एंड सिंह, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुप्ता एंड सिंह, ये मैं साइड कर रहा हूँ इनको। गुप्ता एंड सिंह 2015 का उनका एक स्टडी था, हाँ, पॉइंटेड द लैकुनास इन्वॉल्व in internal audit more particularly with banks, more particularly with banks। अभी गुप्ता एंड सिंह पर करके कोई थे, उन लोगों ने 2015 में स्टडी किया था, उन लोगों ने बोला कि बाबा ये बैंक में इंटरनल ऑडिट में बहुत लैकुना है। हाँ, बाद में किसी ने बोला, सो दिस वाज फर्दर सपोर्टेड बाय by Noren Ha। अभी ये सब मेरे
IIMA के प्रोफेसर है, गुप्ता एंड सिंह, लोरन, ये सब मेरे IIM के प्रोफेसर हैं। उनका लेट से उनका एक स्टडी आया था 2017, हाँ, सपोर्टेड द व्यू गुप्ता एंड सिंह, सपोर्टेड द व्यू। फर्दर एक और स्टडी हुआ था, फर्दर स्टडी बाय शेरी, let's say 2018, contradicted their views, contradicted the findings of both the authors by citing RBI regulations in the conduct of the two audits. मतलब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू में आप 15-20 स्टडी लेते हो, 15 से 20, सब लोग सुनना मेरी बात गाइस, कम से कम 15 से 20, नहीं 15-20 तो एटलीस्ट 12 स्टडीज, कम से कम 12 स्टडीज, ऑल माय स्टूडेंट्स, कम से कम 12 स्टडीज अपने एरिया में आइडेंटिफाई करो। लेट्स से अगर आप इंटरनल ऑडिट पे काम कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कम से कम 12-13 पेपर डाउनलोड करो, उनके फाइंडिंग्स को आपस में लड़वाओ और एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करो। एटलीस्ट डाउनलोड 12 or 13 पेपर्स इन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम, अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी है 12-13 पेपर डाउनलोड करो, देखो कि क्या हुआ है आपके फील्ड में। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी अबाउट इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस, देयर आर सो मेनी पीपल, काउंटलेस पीपल हु मस्ट हैव स्टडीड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस, और आप जो ढूंढ रहे हो वो सब पहले ढूंढा जा चुका है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। इसके लिए जब आप कुछ नया ढूंढ रहे हो तो जूने पुराने लोगों के काम को देखो और उनको साइट करो। ये है लिटरेचर रिव्यू, वास्तव मेरा यह है लिटरेचर रिव्यू। अभी अगेन मेरा एक फुलर लाइफ से मेरा वीडियो है, मैंने कुछ पिछले दिसंबर उसको बनाया, पिछले दिसंबर नहीं, लास्ट टू लास्ट दिसंबर बनाया था उसको। वो है खाली आप गूगल पे आप इसमें यूट्यूब पे टाइप करोगे ना ब्लैक बुक, तो वो बहुत ऊपर वीडियो आता है। वो उसमें मैंने पिंक कलर से लिखा है मैंने, हाउ टू मेक ब्लैक बुक। वो मेरा 20-22 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने पूरा बताया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने बताया। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट लास्ट सैटरडे मैंने एंड्रूज कॉलेज को सेशन दिया था पूरा 2 घंटे का, उसमें मैंने उनको बताया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करने का, वो भी वीडियो दिया है मैंने आपको, मीरा मैम ने आपको भेजा है, वो जरा देख लेना, ठीक है। ये आपका लिटरेचर रिव्यू बस। और अभी आते हैं यहाँ पर, यार ये बहुत हैंग कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, बाय द वे यू कैन आस्क मी डाउट्स, जब तक ये खुले ना तब तक यू कैन आस्क मी डाउट्स। यू हैव एनी डाउट गाइस? यस, नो डाउट्स, इट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग और यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, देखो लिटरेचर रिव्यू ये चैप्टर नंबर 3 है, ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है गाइस। चैप्टर नंबर 4 डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पूरा एक्सेल का पूरा जो भी आपका काम है, आपका जो भी चार्ट्स, पिक्चर्स, फिगर्स, हाइपोथेसिस टेस्ट का रिजल्ट्स, ये सब यहाँ पर आने वाले हैं। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन तभी कर पाओगे जब एक्सेल में इंफॉर्मेशन होगा, बिना एक्सेल के इंफॉर्मेशन के डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाओगे। और लास्टली आपका कंक्लूजन एंड सजेशन, आप क्या कंक्लूड करते हो। जैसे अगर आपने ICICI बैंक या HDFC बैंक को कंपेयर किया तो कंक्लूजन क्या था, हु इज डूइंग बेटर, एंड इफ इट इज डूइंग बेटर व्हाई इट इज डूइंग बेटर, व्हाई यू आर सेइंग ICICI बैंक इज डूइंग बेटर, व्हिच आर द डेटा व्हिच सपोर्ट्स योर व्यू। ओके, फिर आपका बिब्लियोग्राफी, ये अपेंडिक्स। बिब्लियोग्राफी में आपका पूरा साइटेशंस आता है, साइटेशंस। अभी देखो मैं आपको साइटेशन कैसे करने का बता देना हुआ, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन। देखो यहाँ पर एक रेफरेंस सेक्शन होता है वर्ड में, ये देखो ये रेफरेंस सेक्शन होता है, रेफरेंस इट्स नॉट ओपनिंग, बट आप जाके देखो कि वर्ड में रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। और एक APA स्टाइल होता है, APA स्टाइल गाइस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उस स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको ये साइटेशन वगैरह करना है, ठीक है। सो आप जाके 2 वीडियो देखोगे, एक कि एक्सेल में हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं,
इनफैक्ट अगर मुझे हाइपोथेसिस टेस्ट आपको सिखाना है तो कम से कम मुझे 2 से 3 दिन लगेगा, कम से कम 7-8 घंटा लगेगा मुझे आपको हाइपोथेसिस टेस्ट सिखाने में एक्सेल में और आर में। तो एक्सेल में हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हो वो देखो, और सेकंड रेफरेंस कैसे करते हैं, रेफरेंस। तो जैसे यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी है ना गाइड, बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी में आपको एपीएस स्टाइल में रेफरेंसिंग करना होगा। रेफरेंसिंग मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर के रिसर्च प्रोजेक्ट देखे हैं या फॉर दैट मैटर आपने कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में लिखने का। और अपेंडिक्स में आपका क्वेश्चनर, आपका मैप्स या आपका इंटरव्यू शेड्यूल्स, ये सब अपेंडिक्स में आएगा। अपेंडिक्स में आपका आ जाएगा चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, मतलब चार्ट पिक्चर्स एनालिसिस वगैरह में आ जाता है। बट अपेंडिक्स में आपका क्वेश्चनर आएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चनर बनाया है सर्वे करने के लिए या आपके पास कोई इंटरव्यू शेड्यूल था, किसी का इंटरव्यू आपने लिया, वो सब अपेंडिक्स में आपका गाइस आ जाएगा। तो ये सारा आता है गाइस। तो इस तरह देखा जाए तो देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स। देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, फुलर लाइफ्स, उस पर आपको बहुत सारे ब्लैक बुक पे पूरा एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा और वो सारे वीडियोस को आप देखो, आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा रिलेटेड टू ब्लैक बुक। अगर कुछ रहेगा तो यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैंने इनफॉर्मली कॉलेज के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स को हेल्प किया है विदाउट, जो मतलब मेरे अंडर जो नहीं भी रहते हैं मैंने उनको भी जाके गाइड किया है। मैं ऐसा कोई डिस्टिंग्विश करता नहीं हूँ, मगर कोई भी मुझे फ़ोन किया, बात किया, सर मेरा ये टॉपिक है, तो 15-20 मिनट उससे बात करता हूँ, बाद में उसको टॉपिक को घुमा फिरा के उसको बताता हूँ ये कर वो कर, ताकि तेरा टॉपिक अच्छा हो जाए। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। जैसे मेरी स्टूडेंट है, बीएफएम की स्टूडेंट थी, अभी वो एसआईएस से एमबीए कर रही है, उसको सीएसआर में बहुत इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो वो मेरे पास कम से कम आधा घंटा बैठी, तो मैंने उसको सीएसआर टॉपिक डिफाइन करके दिया। अभी वो एसआईएस में उसने अपने वो एसआईएस एमबी बिजनेस स्कूल में उसने सीएसआर कमेटी वो संभाल रही है। बोली सर आपने जो मुझे टॉपिक दिया था मैं उसको आगे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर भी वो कुछ वही टॉपिक ले रही है सीएसआर से रिलेटेड। तो टॉपिक जिसको आप आगे लेके बढ़ा सको, अच्छे से करो और किसी एक्सपर्ट से बात करो। जैसे आपके क्लास में आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनसे बात करो, डिस्कस करो कि ये टॉपिक को आप कैसे घुमा सकते हो, कैसे इसमें कुछ नया वैरायटी डाल सकते हो, कैसे उसका एनालिसिस में रिगर ला सकते हो, रिचनेस ला सकते हो। ये सारे चीज़ है। तो ये सारे चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो लेट मी टॉक टू यू नाउ, लेट मी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी। कंप्यूटर तो फुल हैंग हो गया है, कौन जाने मैं क्लास में हूँ कि नहीं हूँ, लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे मुझे। नहीं, मैं वो फोटो भी नहीं देख पा रहा हूँ आपका, मतलब You're audible, sir. Where you're audible, but I want to come to that window pane of Microsoft Team where I can see people. Okay, you can ask me questions. You can ask me questions. Any questions, any doubts? no, sir. No, sir. It means you have not understood anything. And I think मैंने बहुत कुछ बता दिया है, आपको समझा ही रहेगा। मीरा मैम, आर यू देयर? मीरा मैम, हेलो मीरा मैम, आर यू देयर? Yes, sir, here only. मीरा मैम, कुछ आपके कुछ सवाल होंगे बच्चों से रिलेटेड जो बच्चे आपसे हमेशा पूछते हैं। आई कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। सर अभी तो यही पूछ रहे हैं कि टॉपिक क्या रखना है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे स्टूडेंट्स को एक बार देखो मेरा एडवाइस ले लो। सबसे पहला टॉपिक आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा इंडेक्स बनाओ। सोचो समझो, गूगल पे जाओ, गूगल स्कॉलर पे जाओ, पूरा इंडेक्स अच्छे से बनाओ। उसके बाद डेटा कलेक्ट करने पे चलो, ऐसा रहेगा, बहुत आसानी से बनेगा। अगर आपने कोई अच्छा टॉपिक ले लिया ना तो आपका 50% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो गया। जैसे अद्वैत का प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया, उसको मस्त टॉपिक मैंने अभी बना के दे दिया, वो ले लेगा, डन हो गया उसका। तो टॉपिक अच्छा लो कोई, फिर उसका आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो। अभी ये इंटरनल ऑडिट वाला किसी ने लिया नहीं है, तो बीबीआई स्टूडेंट, बैक स्टूडेंट, ये टॉपिक आप ले सकते हो। इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस को जो मैंने दिया था ना, वो आप ले सकते हो। इसी पूरा हैंग हुआ है मेरा। सर हाँ पूछो। ये टॉपिक देखो बहुत अच्छा। स्टॉक मार्केट को रिलेटेड आपको ये एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक बता सकते हो, लाइक अगर उसको स्टडी करना है तो क्या कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में आपको क्या स्टडी करना है बोलो, मैं अभी डिफाइन करता हूँ 5 मिनट में। स्टॉक मार्केट में आपको क्या स्टडी करना है? स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा टर्म है। जो पेनी स्टॉक्स आते हैं अच्छा, ओके। उनके रिलेटेड कुछ।
बोलते हैं उसको एक मिनट, स्मॉल ब्लू चिप कंपनीज, बाद में क्या बोलते हैं उसको, पेनी स्टॉक्स को? सर पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जो बहुत कम रेट पे मार्केट में आते हैं एंड देन आफ्टर सम इयर्स दे गो टू अ वेरी हाई बिड लाइक. ओके, यू आर अ बीएफएम स्टूडेंट? No sir, I am an BAF student. आप स्टूडेंट, ओके. सो पेनी स्टॉक्स के बारे में टॉपिक हम लोग लेते हैं. तो सी पेनी स्टॉक्स के बारे में यू कैन स्टडी ऐसे. तो एक मिनट उसको मैं डिफाइन करता हूँ तुम्हारे पेनी स्टॉक्स को. टॉपिक गिव मी सम टाइम, आई विल डिफाइन इट. पेनी स्टॉक्स हम लोग उसका परफॉर्मेंस स्टडी कर सकते हैं क्या पेनी स्टॉक्स का? सर्टन पेनी स्टॉक्स लिया या स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं ना उसको, मिड कैप. ओके, पेनी स्टॉक पे आप ले सकते हो, बट आई हैव टू थिंक एंड डिफाइन दिस टॉपिक फॉर यू. उसको अच्छे से डिफाइन करो ताकि वो आई कैची लगे. आपका जो टॉपिक है ना वो आई कैची लगना चाहिए. तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे टॉपिक को डिफाइन करने के लिए. परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्ट पेनी स्टॉक्स, select penny stocks in Indian bourses. In India, और उनका परफॉर्मेंस ठीक है. तो ये मेरे मन में आया, मैंने डाल दिया. इसको और अच्छा कर सकते हैं. Okay. और चाहिए तो इसमें थोड़ा आगे पीछे कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्ट पेनी स्टॉक्स इन इंडियन बोर्सेस, या रुको इसको और adjust कर सकते हैं. थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दो. stocks in Indian bourses. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जरा ये टॉपिक देखना जरा, जिसका पेनी स्टॉक जिसने बोला था मुझे. पेनी स्टॉक्स इन इंडियन बोर्सेस, आर दे वर्थ इन्वेस्टिंग? हाँ, उसमें परफॉर्मेंस फीचर्स जो भी है पूरा डालो उसके अंदर. बाद में आंसर दो. सो इसमें मैं सिलेक्टेड कंपनी का भी डाल सकती हूँ. लाइक इफ MFL इज अ कंपनी जिसने अभी पेनी स्टॉक डाला है, मतलब जिनका भी पेनी स्टॉक मार्केट में आया है, so I can take the example, right? या यू कैन टेक एग्जांपल और पूरा एक्सेल में पूरा उनका सब डेटा वीटा निकालो पिछले 10 साल का, कंपनी का फॉर्म हुआ, चार्ट बीट बनाओ. Even I can take the topic For only one which is company it is okay. नहीं, डोंट टेक वन कंपनी. व्हेन यू से स्टॉक्स, कम से कम 4-5 कंपनी का स्टॉक्स लो. एक कंपनी का स्टॉक में ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाएगा. कम से कम 4-5 कंपनी को. तो उनका फाइनेंशियल एनालिसिस इज इनफ, राइट? आप If I do a short. जब आप पेनी स्टॉक्स का स्टडी कर रहे हो तब उनका आपको रिटर्न बताना पड़ेगा. उनका रिटर्न कितना % है, और आपको 4-5 पेनी स्टॉक्स लेना पड़ेगा. फिर बताना पड़ेगा सबसे अच्छा कौन से पेनी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, क्यों परफॉर्म किया. बहुत सारा है. ये टॉपिक इतना ऐसा है ना, इसको आप बहुत अलग अलग एंगल से स्टडी कर सकते हो. अभी ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे स्लाइसिंग करते हो, कहाँ पे स्टॉप करते हो. इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगी. तो ये टॉपिक अच्छा है. स्टॉक्स इन इंडियन बोर्सेस, आर दे वर्थ इन्वेस्टिंग. अभी बोर्सेस माने स्टॉक एक्सचेंज होता है. और कोई टॉपिक देगा तो मैं इसको डिफाइन करके देता हूँ. एनीबॉडी एल्स? sir मेरे को भी Sir, am I audible? Yes, you are audible. Go ahead. Sir, can we do on education loan abroad studies for abroad studies? हाँ, ले सकते Something हो. like that. या यू कैन टेक अभी एक हैंडल. Because that's the current going thing in my life. That's why. ओके, एजुकेशन लोन्स पे शी इज इंटरेस्टेड. रुको मैं आपको एक टॉपिक डिफाइन करके देता हूँ एजुकेशन लोन से रिलेटेड है. And sir, I'm visiting like yesterday only I visited 4 banks and 2 NBFCs. So it will be worth, like I know the interest rate and what are the moratorium period and everything. So you visited NBFC? Yeah, one was this our. ओके, तो चलो ठीक है. आई थिंक there's some problem at hand. मैं तो एजुकेशन लोन पे even can I take like which market is the best for the investment? Like we can compare commodities market, crypto market, stock market, money market as well.
नहीं नहीं, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। रोल ऑफ एनबीएफसी इन, हेलो। हाँ गो अहेड। हाँ सर, so which market is the best for the investment? नहीं नहीं, योर वॉइस इज Market, foreign exchange market और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे साथ आप बैठो, मैं मंडे कॉलेज आऊँगा, मैं जो भी मिलेगा टॉपिक डिफाइन करके दूंगा, डोंट वरी। मेरे साथ देखो, टॉपिक बताने का, मेरे साथ 10-15 मिनट डिस्कस करने का, तो मैं उसको आगे पीछे करके एक अच्छा टॉपिक बना के दूंगा। अभी एजुकेशन लोन का टॉपिक है ना, उसको भी मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। एंड यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली एजुकेशन लोन, मतलब या ऐसा लो, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन लोन, इकोनॉमिक्स ऑफ education loans for study abroad initiatives, for study abroad। तो मैं सोच रहा हूँ, रुको मैं सोचने दो मुझे, abroad programs, हाँ ये पूरा स्टडी करो। और यहाँ पे उसने अभी वो लड़की बोल रही थी एनबीएफसी ना, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ कहते हैं क्या बेटा, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम फ्रॉम एनबीएफसी। आवाज आ रहा है? ये टॉपिक लो जरा। Hello, sir. हाँ बोलो बोलो। Sir, NBFCs and bank we can compare also na in this topic. यू कैन, लेकिन डिस्कस करना पड़ेगा, मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम Yes, लोग sure. देखिए, व्हेन यू टेक बैंक एंड एनबीएफसी देन यू हैव टू गो टू बोथ द प्लेसेस। Yeah, because I'm visiting only. तो फिलहाल ऐसा इस टॉपिक को ऐसा रखो, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन लोन्स फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, और Okay, यहाँ पे डाल दो ऐसा, स्टडी ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन लोन्स फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एनबीएफसी, रेफरेंस टू एनबीएफसी। Sir, I can take this. Yeah, okay. Like, which market is the best market for the investment? Like, we can Thank you, compare sir. various markets. नहीं, Money आप market, foreign exchange. yeah, money market and all, you can take it. You meet me on Monday. I'm coming to college. You meet with me. You meet me. I will define your topic. Don't worry. Okay, sir. Okay, sir. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, I'll define it for you. Don't worry. अरे सर ऑफिस में हो, ठीक है चलो। थोड़ा टाइम निकल के आओ मेरे को मिलने, नहीं मंडे हुआ, ट्यूसडे आओ, वेडनेसडे आओ, कभी भी आओ, आई विल डिफाइन। चलेगा चलेगा। शुभ बोल रहा है क्या? हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। तू इंटर्नशिप कर रहा है ना, उससे मस्त टॉपिक ले। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, इंटर्नशिप वाला ब्लैक बुक कैसे बनाते हैं। इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट तो और आसान है, वो तो 50 पेज का ही बन जाएगा, उस पर पूरा बना अपना। तो वो देखता हूँ, बट मेरे को लाइक कौन सा मार्केट बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे बाद में, आउट ऑफ हाँ, दिस मैं क्लास बाद में फोन करता हूँ आपको। हाँ डिस्कस करके एक अच्छा टॉपिक तेरे को दूंगा मैं, डोंट वरी, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ ये क्लास में सब लोग सुनो, अगर आपने मेरे को टॉपिक दिया ना, मैं 10-12 मिनट में आपसे डिस्कस करके उसको डिफाइन कर डालूंगा, अच्छा सा डिफाइन करूंगा, और ऐसा डिफाइन करूंगा कि लगेगा आपको हाँ बाबा इसमें मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, ओके। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। मीरा मैम थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आई नेवर टॉट बैथ, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ा है बैथ के बच्चों को, मैं तो पढ़ाता तो मजा ही आता था। बैथ इज वन ऑफ माई फेवरेट बैचेस। So thank you, Meera ma'am, as a coordinator for giving me the opportunity. Thank you all my students for listening me patiently. I am there always. In fact, मेरा again guys सुनो, मैं YouTube पे ना मैं respond करता हूँ लोगों को। I am not telling you to subscribe, लेकिन comment section में जाके भी सवाल पूछोगे ना YouTube में, I respond. मैंने कम से कम पूरे मुंबई में नहीं बोल करके ऑलमोस्ट जो भी मेरे को वीडियो देखता है नीचे कमेंट में जाके लिखता है, तो मैं उसको रेस्पॉन्ड करता हूँ, टॉपिक डिफाइन करके दे देता हूँ। वो मुझे एरिया बताता है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो अगर आप वो हाउ टू मेक ब्लैक बुक मेरा जो यूट्यूब वीडियो है, उसके कमेंट को पढ़ोगे ना कमेंट में, तो आपको अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं लोगों ने कहाँ से सवाल पूछा है, पूरे मुंबई से ही लगता है मुझे पूछा है, तो मैंने सबको डिफाइन करके दिया है। तो कमेंट सेक्शन जरा पढ़ो, हाउ टू मेक ब्लैक बुक। इवन बाद में वो जैसे शुभ ये इंटर्नशिप कर रहा है किसी अच्छे जगह से, तो वो मैंने इंटर्नशिप के ऊपर भी एक 10 मिनट का वीडियो बनाया, वो अपने आप में पूरा क्लियर है, और वो भी अगर देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। उसके नीचे भी कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ो, तो कमेंट सेक्शन पढ़ा करो मेरे यूट्यूब वीडियो का, तो उसमें आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा अटेंडेंस डाउनलोड करनी होगी आपको। ये भी लफड़ा है क्या? हाँ सर, फिर अपन सर वो कमेटी रिपोर्ट में भेजना पड़ेगा। अच्छा मैम, मैं डाउनलोड करता हूँ।
This way I'm very poor in all this paperwork and all. नहीं सर इधर नहीं कहाँ से डाउनलोड होता है? सर, ये जो 3 टाइप पार्टिसिपेंट के इधर यहाँ. मैं तो ओके आई एम जस्ट डाउनलोडिंग. हाँ. So thank you guys. See you in college. मेरा नंबर अगर चाहिए तो मीरा मैम से ले लेना. आपको 8 बजे के बाद ही कॉल करना. We'll discuss. ठीक है? ओके. ओके सर, Thank you, थैंक यू. sir. बाय सर. Thank you, sir. Thank you, sir.